Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. We are here again to help you in your school examinations as well as the competition level examinations. So basically, we do study for both, right? And this is the revision that is of the part 2. That means we are going to revise the remaining half of the chapter. ऑलराइट सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आपके नोट्स जो हैं जो आपने प्रिपेयर किए हैं उन्हें जो है आप बाहर निकाल लीजिए. ऑलराइट एंड देन यू शुड जस्ट गो विद अस. ठीक है, तो आपको साथ साथ रिवीजन करते चलना है, जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलना है. ऑलराइट सो आपको अगर स्टडी मटेरियल एंड डीपीपी चाहिए, यू कैन डेफिनेटली गो ऑन द टेलीग्राम ऐप, राइट द कोड TTB010 over there on the Telegram app, write the code and then join the channel. Then you can access all the DPPs and study material available over there. Alright, and you can see this is the awesome team which is going to help you in your preparation. Alright, तो जो भी हम लोग prepare कर रहे हैं that is for the school examinations as well as for the competitive level examination. So basically you are going to be prepared for both and this team will be helping you in achieving that. Alright, and the most important thing is that we have brought to you some amazing things that वैसे तो सबको पता है ये बातें, बट फिर भी जो है मैं उनको वापस बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ, सो दैट यू में यू नो ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जो है एक्टिव रहेगी. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज हम लोगों ने आपके लिए कुछ पैकेजेस प्रिपेयर किए हैं एंड वो जो पैकेजेस हैं वो सभी पैकेजेस क्या कर सकते हैं दैट दे कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स. हाउ? देखिए, जैसे एक प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए होता है, एक मेंटोरशिप आपको चाहिए होता है, एक प्रॉपर यू कैन से स्टडी मटेरियल, एक टेस्टिंग पैटर्न, एक पूरा प्रोसेस जो चाहिए होता है दैट वी have prepared for you. You have to go on this website www.talkingtextbooks.in. Over there you will be getting two type of packages, right? So number one is the full package जिसके अंदर आपको study material मिलेगा. So you do not have to wonder about the study materials कि भाई आपको कौन सा study material लेना है, कौन सा नहीं लेना है. So basically you do not need to wonder about, right? So this is it, and the study material is totally very much you can say comprehensive and organized, so you will not be like overwhelmed with any of the information like this is to be done for the school examinations or this is to be done for the competitive level. So basically they are going to help you, all right, in both the examinations. What you will be getting next is the recorded and live classes by TTB experts. That is very much beneficial क्योंकि जो recorded lectures हैं, जो teacher के साथ interaction है, that will be very much beneficial in understanding the study material, right? Homework submission is very much important because you should definitely have to do homework, and that's why you will be doing the homework. We will be checking that, so that will be very much beneficial. Bi-weekly quizzes is the thing in which you are going to be tested twice in a week. That means आपका बहुत ही frequently test होगा, जिसकी वजह से आपके दिमाग में जो information already आप पूरे week में जो है देखते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जो भी आप वीक में स्टडी करते हैं उसका ही टेस्ट हो जाता है, तो वो बहुत ही फ्रेश रहता है आपके ब्रेन में, तो दैट इज़ वेरी मच गुड, राइट. पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो होते हैं वो आपके कुछ टाइम बाद होते हैं, लाइक 2 वीक्स में होते हैं, ठीक है, 3 वीक्स में होते हैं. तो बेसिकली पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स का क्या मोटिव है? पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स हम लोगों ने सिर्फ इसीलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपको फाइनल एग्जामिनेशन के बारे में पता चल सके. फाइनल एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है, फाइनल एग्जामिनेशन का क्या यू कैन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके का लेवल होता है, उससे आपको फैमिलियर करवाने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड दैट. सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स विल बी you will be getting in the whole package. You can definitely buy that. अगर किसी ऐसे बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई उसको बहुत कुछ नॉलेज है बट दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स, दे कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज, राइट. तो दे कैन गेट द बाई वीकली क्विजेस, दे विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स एंड दे विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस. सो बेसिकली दैट इज ऑल, राइट. एंड दीज बोथ आर द पैकेजेस जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जो भी आपका गोल है, आप जो भी एग्जामिनेशन को फाइट करना चाहते हो उन सभी में इसको हेल्प जो कर सकता है ये. इफ़ यू वॉन्ट any you can say discount, then you can definitely write a code CY live. If you write this code you will be getting 30% discount, all right. If you get definitely if you write the CY live code then you will be getting 30% discount. and बेनिफिट क्या होगा कि पहले से ही इनका जो कॉस्ट है वो बहुत लो है और 30% डिस्काउंट होने के बाद जो कॉस्ट होगा वो और भी कम हो जाएगा. सो बेसिकली आपका ही इसमें जो है प्रॉफिट हो रहा है, राइट. Even if you have any query regarding anything like what are the packages or how they will be benefited to you, so basically you need to call us.
So 919549041111. This is the number on which you can call us and all your queries will be resolved. Alright, so basically this was it, information. Alright, now it's time for the promise. So you should promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising them on the daily basis. So basically revision जो है हमको करना ही करना है. वैसे आज आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको बाकी सारे लेक्चर्स में तो पड़ेगी, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो कि जिसकी हमने डायरेक्शन देखना चाहा था. सो बेसिकली जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था दैट इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, जब चार्जेस क्या करते हैं, किसी कंडक्टर में से फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो चार्जेस कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, दैट विल कंस्टिट्यूट अ करंट. ऑलराइट, तो बेसिकली चार्जेस कितने फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं, बेसिकली दैट विल गिव यू द करंट. और जो डायरेक्शन होता है करंट का, वो कहाँ, मतलब कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल्स तक होता है, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो डायरेक्शन है करंट का, दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. लेकिन ये बात आपको पता होना चाहिए दैट इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस जो फ्लो करते हैं, वो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव वन. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई किस तरीके से वायर के अंदर करंट फ्लो करता है. देखो, जब कभी एक हम नॉर्मल वायर की बात करें, वो वायर कनेक्टेड नहीं है, सिंपली रखा हुआ है, ठीक है, तब क्या होगा, तब उसके अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव तो करेंगे, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसके अंदर हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे. सो बेसिकली वो मूव करते रहते हैं और वो बिल्कुल रैंडम मोशन करते हैं. लाइक उनको नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, राइट? इधर जा रहे हैं टकरा रहे हैं, इधर जा रहे हैं टकरा रहे हैं. सो बेसिकली दैट इज द रैंडम मोशन जो उस वक्त वो शो कर रहे होते हैं. कब? जब हम सिंपली एक वायर की बात कर रहे हैं, उसको अभी हमने किसी बैटरी, ठीक है, उससे अटैच नहीं किया है, हम सिंपली एक वायर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, तब क्या हो रहा होता है उसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं, कैसे भी जो है टकरा रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रही है. सो बेसिकली अगर हम इस पूरे कंडक्टर पे बोलें तो इसके अंदर कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बेसिकली इन सभी का मोशन नलीफाई हो जाता है. कोई अगर इधर मूव कर रहा है, टकरा रहा है, उसकी एनर्जी दूसरे को मिल जाती है. सो बेसिकली जब कभी भी रैंडम मोशन हो रहा होता है, तो इन सब का एवरेज अगर हम देखें तो दैट वुड बी अ जीरो वेलोसिटी, राइट? सो दैट्स वाई जब कभी भी एक कंडक्टर रखा होता है, तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव करते हैं, बट वो रैंडम कर रहे होते हैं, अपनी मन से कर रहे होते हैं, तो दे विल नॉट कंस्टिट्यूट अ करंट. ठीक है, बट अगर क्या कर दिया जाए, उसी वायर के दोनों तरफ अगर हम क्या करें, दोनों एंड्स पे अगर हम क्या करें, सेल लगा दे, बैटरी ज्वाइन कर दे, तो क्या होगा, एक एंड तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा, एक एंड नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा. तो देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव भागने लगेंगे, बिकॉज देयर विल बी व्हाट, पोटेंशियल का काम क्या करना होता है, पोटेंशियल का काम करना होता है मूव करवाना चार्जेस को, राइट? क्योंकि हम बोलते हैं पोटेंशियल क्या है, वर्क डन ऑन चार्जेस टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, राइट? तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, उन चार्जेस को मूव करवाता है, उन चार्जेस पे काम करता है बेसिकली, राइट? तो जब वो मूव करवाएगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा, एक पुश मिलेगा, एंड दे विल गो इन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. तो बेसिकली दे आर मूविंग, और जब सब साथ मूव कर रहे हैं तो वो एक वेलोसिटी से मूव करते हैं, नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, जैसे अभी तो ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, सो बेसिकली यहाँ पर अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं है. ठीक है, दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, रैंडम मोशन कर रहे हैं. तो ऑन एन एवरेज इन सभी की अगर मैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की, तो मुझे जो इनकी एवरेज वेलोसिटी मिलेगी दैट वुड बी जीरो. ठीक है, दैट वुड बी जीरो, एंड दैट्स वाई अभी जब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तब हम ये मानते ही नहीं कि इसके अंदर करंट है, और होता भी नहीं है, तब तो करंट हमें फील होता ही नहीं. नॉर्मल वायर रखा हुआ है, आपको कैसे लगेगा उसके अंदर करंट? ठीक है, तो बेसिकली ये क्योंकि इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, दैट्स वाई वहां पे आपको कोई करंट प्रेजेंट नहीं होता. लेकिन अगर हम बात करें जब हमने क्या किया है, इनको
किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया है, तो तब क्या होता है, तब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। एंड वो कौन से वेलोसिटी से मूव करेंगे, दे विल बी मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज ये क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती मूव करवाया जा रहा है, ठीक है। बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दे आर फोर्सिंग दैम टू मूव, राइट। तो वहां पर क्या होगा, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक वेलोसिटी से जाएंगे, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। सो बेसिकली वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते चले जाएंगे, राइट। एंड दैट्स व्हाट कंस्टिट्यूट अ करंट। करंट तब होगा जब सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा नहीं हो एक इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, तब नहीं करंट कंस्टिट्यूट होता। तो बेसिकली जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तभी हम बोलते हैं दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट इन दी वायर। ऑलराइट, तो हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑलराइट, तो बेसिकली यही इस तरीके से ही जो है करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में। लेकिन अब आप देखिए कि आपको क्या चाहिए होता है, मतलब जब जैसे मानो, ठीक है, अभी आपने क्या किया, बैटरी लगा दिया, राइट। बैटरी जैसे ही आपने कनेक्ट किया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करने लगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे, तो देयर विल बी अ करंट, राइट। बट लेकिन हमें कंटिन्यूसली चाहिए करंट, बिकॉज अगर जैसे मानो आप बल्ब यूज करना चाहते हो, तो बेसिकली आपको ऐसा होगा कि भाई उसके अंदर से कंटिन्यूसली करंट जाता रहे, राइट। तो क्या होना चाहिए, क्या वहाँ पे प्रॉपर चीज होना चाहिए कि वहाँ पे कंटिन्यूसली आपको जो है करंट मिलता रहे, वो होगा कंटिन्यूसली प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, राइट। अगर वहाँ पे आपको लगातार पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो फिर करंट भी कंटिन्यूसली फ्लो होगा। तो बेसिकली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कंटिन्यूस मिलता है या फिर हमें अप्लाई करना होता है, वो कौन देता है, बैटरी देती है। तो बेसिकली बैटरी क्या करती है, बैटरी के अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। ड्यू टू दैट रिएक्शन बैटरी के दोनों तरफ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल जो है क्रिएट हो जाता है, एंड दैट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वहां पर उसके अंदर जो है बेसिकली वहां पर ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। ऑल यू नीड टू डू इज टू कनेक्ट अ वायर। जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि आपने एक सिंपली वायर कनेक्ट किया है एक सेल के दोनों एंड्स पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेल बहुत ही जल्दी डेड हो जाएगी। बेसिकली क्यों, क्योंकि करंट जो है जाता रहेगा, यूज तो होगा नहीं, ऐसे जाता रहेगा। तो बेसिकली आपका जो बैटरी है वो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ यूज हो रहा है, राइट। तो बेसिकली बल्ब हो, ठीक है, किसी और तरीके का कोई डिवाइस हो सकता है, फैन हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी, उसके अंदर के केमिकल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होंगे बेसिकली। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड राइट नाउ, ठीक है। तो जब कभी भी एक सेल एक बैटरी जब कनेक्ट की जाती है किसी भी सर्किट के अंदर या फिर किसी वायर के दोनों तरफ, ठीक है, दोनों एंड्स को उससे कनेक्ट किया जाता है, तब उसका कंटिन्यूस करंट करवाने के लिए देयर हैज टू बी अ कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड इनसाइड द बैटरी। और वो होता है किसकी वजह से, केमिकल्स की वजह से। तो बेसिकली ये सेल, बैटरी, ठीक है, आपके घर जो इलेक्ट्रिक पावर आ रही है, ये जो ऐसे सोर्सेज हैं जो आपको कंटिन्यूस करंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, और इसके लिए जरूरी है दैट देयर हैज टू बी अ कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंस, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को यही जानने की जरूरत है इसमें, ठीक है। देखो उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था एंड दैट वाज व्हाट। देखो इसमें बोला गया है इफ यू पास 50 मिली एम्पेयर, आई टोल्ड यू मिली एंड माइक्रो आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये जो मिली है ना, ये क्या हो गया है, 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है दैट इज 500 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि अब देखो रिविजन में भी मैं बता रही हूँ, मतलब ये सचमुच में इंपॉर्टेंट ही है, राइट। देखेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास इट थ्रू इन 5 मिनट्स। अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको क्या चाहिए होगा, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, राइट। हमको पता होना चाहिए करंट का फॉर्मूला जो कि क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो जब आप चार्ज ऊपर देखेंगे तो इसके अंदर हम लिखेंगे NE, ऑलराइट। देखो मैंने लिखा होगा कहीं, देखो Q इक्वल्स टू NE, दैट वी विल बी गोइंग टू बी राइट। यहाँ पर E का वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन 1
इलेक्ट्रॉन, है ना, E का वैल्यू है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड Q इज द टोटल चार्ज। अब क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, दैट मीन्स वी आर आस्क्ड अबाउट N, और ये Q कैसे मिलेगा हमको, कैसे पता चलेगा, करंट से, I और T इन दोनों से ही हमको पता चलेगा कूलम। सो बेसिकली अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता है, ठीक है, अगर आपको करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम एंड आपको पता है टोटल चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, अगर आपको ये फॉर्मुलेज पता है, मैं आपको बताती हूँ, ये फॉर्मूला I इक्वल्स टू Q बाई टी एंड Q इक्वल्स टू NE, अगर ये फॉर्मूले दोनों आपको पता हैं तो बेसिकली आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज उस वक्त क्या हो पाएगा, आप लोग इन दोनों ही फॉर्मूलेज को यूज कर पाएंगे। तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप निकाल सकते हैं चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, आप निकाल सकते हैं टोटल चार्ज फ्लोइंग इनसाइड अ कंडक्टर, आप निकाल सकते हैं करंट फ्लोइंग इनसाइड अ कंडक्टर, आप निकाल सकते हैं टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। तो बेसिकली आप इतनी सारी क्वांटिटीज को सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है भाई क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूले आपको पता है। ऑलराइट, इसी तरीके से ये सिमिलर क्वेश्चन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स, राइट। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है एक पाथ, ठीक है, बिकॉज दे आर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एयर में से तो फ्लो नहीं होता, एयर में से फ्लो नहीं होता तो इसका मतलब उसे कुछ यू कैन से मटेरियल चाहिए, ठीक है, एक मीडियम चाहिए फ्लो होने के लिए। फ्लो होने के लिए जो मीडियम है वो कौन प्रोवाइड करता है? कंडक्टर। सो मतलब अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होना है तो देयर हैज टू बी द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर, और अगर वहां पे कंडक्टर प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब बिल्कुल श्योर है कि वहां पर हमें एक पाथ चाहिए होगा कि भाई करंट यहां से यहां तक जा सके बेसिकली, एंड दैट पाथ इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि ये एक क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए। क्लोज का मतलब पूरा पाथ एक सर्कल होना चाहिए, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट सर्कल बट इट हैज टू बी अ क्लोज्ड सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मत बोलो आप, तो सिर्फ क्लोज्ड पे ध्यान दो, बिकॉज आप लोग सब सचमुच का सर्कुलर वायर बना देंगे। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना है क्लोज्ड होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि सारे के सारे कंडक्टर्स वहां प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर भी इंसुलेटर अगर बीच में आ जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दो इंपॉर्टेंट चीजें, क्या, एक तो क्लोज होना चाहिए सर्किट, सेकेंड थिंग आपको होना चाहिए वो ये कि कंडक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब इतना ही है कि भाई एक पाथ करंट को मिल जाए एंड दैट हैज टू बी अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, ठीक है। अगर ब्रेक हो गया सर्किट तो मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। अ कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस, जितने भी रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसा पाथ भाई जिसके अलोंग जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके। बेसिकली दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दिस इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट यू हैव एवर सीन। दिस इज द सिंपलेस्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है बैटरी जो कि सोर्स है करंट का, इसके अंदर है स्विच जिससे आप ऑन ऑफ कर सके, इसके अंदर है बल्ब एंड कंडक्टिंग वायर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट सर्किट, ठीक है, एक सिंपलेस्ट वर्किंग सर्किट जो होता है, ठीक है, वो यही है। आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन सर्किट डायग्राम का मतलब क्या है? डायग्राम जो कॉपी में बनाया जा सके। सो बेसिकली आप वहां पे बल्ब का फोटो तो नहीं बनाने बैठेंगे, बैटरी का फोटो तो नहीं बनाने बैठेंगे, राइट। तो बेसिकली कुछ ऐसे सिंबल्स डिसाइड किए गए हैं ताकि अगर उनको बनाया जाए तो सब समझ जाएं दैट दिस इज द सिंबल ऑफ अ बैटरी, दिस इज द सिंबल ऑफ अ बल्ब। तो बेसिकली इन सिंबल्स को जो है सभी मानते हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर डिसाइडेड और यूज्ड वर्ल्ड वाइड। तो तभी जो है कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा अपने आइडियाज को लेकर, अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू कैन से कि भाई आपके जो भी नए आइडियाज हैं, नए इन्वेंशंस हैं, तो वो उन सबको कम्युनिकेट करने में बहुत ईजी रहता है इफ वी यूज दीज सिंबल्स, राइट। तो बेसिकली सर्किट डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो कि सर्किट का हूबहू कॉपी है, बट दिस इज मेड बाय दी व्हाट? सिंबल्स, ठीक है, उनको सिंबल से बनाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट का मतलब कहीं से भी पाथ टूटा हुआ नहीं है, कहीं पर भी कोई इंसुलेटर नहीं है। देख सकते हैं आप, ये बल्ब जल रहा है तो दैट मीन्स दिस की इज क्लोज्ड, राइट नाउ दिस सर्किट इज वर्किंग। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस पाथ है
और करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली क्लोज सर्किट का मतलब है कि भाई क्या हो कि पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस पाथ प्रेजेंट हो, दैट इज जस्ट द क्लोज सर्किट, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्लोज सर्किट, और जिसके अंदर से करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे, बिकॉज अगर क्लोज सर्किट है, अगर पूरा का पूरा पाथ डिसाइडेड है, तो डेफिनेट सी बात है कि भाई पूरा का पूरा जो करंट है वो फ्लो होता रहेगा कंटिन्यूअसली, राइट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओपन सर्किट। अब ये ओपन जो सर्किट होते हैं ना, ये बेसिकली कई तरीकों से हो सकते हैं। या तो आपने स्विच ऑफ कर दिया हो तो ओपन सर्किट बन जाएगा, बिकॉज ओपन सर्किट का मतलब है कोई ना कोई ब्रेक हो जाना, ठीक है, सर्किट का ब्रेक हो जाना, दैट मेक्स इट ओपन, ऑलराइट। तो बेसिकली अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है तो बहुत सारे चांसेस हैं, ठीक है, हो सकता है बल्ब खराब हो गया हो, फ्यूज हो गया हो, राइट, हो सकता है बैटरी डेड हो गई हो सकता है कनेक्शंस लूज रह गए हो सकता है वायर्स कहीं से कट गए हो सकता है स्विच ही आपने ऑफ कर दिया हो। सो बेसिकली जितने भी चीजें, जितने भी कारण जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट होने से रोकते हैं, दे मेक द सर्किट एन ओपन सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी कहीं पे कुछ टूटा हो, कुछ ब्रेक हो, ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा हो, तो दैट मेक्स दैट अ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑलराइट। तो बेसिकली ये चीज जो है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट की होती है, ऑलराइट। अब सर्किट सिंबल्स देख लेते हैं भाई, बहुत सारे जो है सर्किट सिंबल्स होते हैं। अब सिंबल्स क्या होता है, पहले तो उनका डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंबल्स का, सर्किट सिंबल्स का क्या मतलब होता है, दैट आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को मेंशन करने के लिए दैट दिस इज द कंपोनेंट, उसका एक छोटा सा ड्राइंग जो कि सभी बना सके, डेफिनेट सी बात है। ऐसा ड्राइंग जो कि जिसको ड्राइंग नहीं आता ना वो भी बना सके, इतना इजी ड्राइंग सिंबल्स जो है चूज किए जाते हैं, और उन्हीं को क्या बोला जाता है, सर्किट सिंबल्स बोला जाता है। तो बेसिकली ऐसे कंपोनेंट्स जैसे कि बल्ब का एक सिंबल होता है, ठीक है, बैटरी का सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है, वोल्ट मीटर का सिंबल होता है, तो बेसिकली सभी का सिंबल होते हैं, और वो सिंबल इतने इजी होते हैं कि कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से उनको सर्किट सिंबल्स कहते हैं। एंड क्योंकि कोई भी बना सकता है तो डेफिनेट सी बात है कि ये वर्ल्ड वाइड है एंड हर कोई यूज कर सकता है, इजी टू कम्युनिकेट है। तो बेसिकली ये हमारा काम बहुत इजी कर देते हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द इन्वेंशंस एंड द डिस्कवरीज। सो देखो, दीज आर द सर्किट सिंबल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। हम जो भी अभी हमें जितना जरूरत है सिंबल्स को जानने की, हम वही सिंबल्स यूज करने वाले हैं, ठीक है, हम एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। सो बेसिकली देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। एंड इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है, पहले एक जो है एक लॉन्ग लाइन आता है, ऑलराइट, देन अ शॉर्ट लाइन, जस्ट अ सेकेंड, देखो सबसे पहले एक लॉन्ग लाइन आता है, ठीक है, एंड देन अ शॉर्ट लाइन एंड अ थिक, ठीक है, लॉन्ग एंड थिन, शॉर्ट एंड थिक, ये दोनों लाइंस होती हैं, जिसमें से लॉन्ग वाली लाइन प्लस टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और ये जो स्मॉलर है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ इलेक्ट्रिक सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। बैटरी में क्या होता है, बैटरी का मतलब होता है मोर देन 2 सेल्स, ठीक है, मतलब 2-3 सेल्स जो हैं ऐड अप कर दिए हैं, दैट विल कॉल्ड एज अ बैटरी, ठीक है। तो वी कैन से 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, सो दिस इज द बैटरी ऑफ 3 सेल्स, ऑलराइट। और इसका जो भी पोटेंशियल होता है वो ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए पहले वाले सेल का 1.5 वोल्ट है, सेकेंड वाले सेल का 1.5 वोल्ट है, थर्ड वाले सेल का 1.5 वोल्ट है। अगर इन तीनों का 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ये सब बैटरी में ऐड ऑन हो जाएगा, और इस पूरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलने वाला है दैट वुड बी 4.5, ठीक है। तो दैट वुड बी यू कैन से ऐड ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स को आप कैसे शो करने वाले हैं, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन दैट विल शो द कनेक्टिंग वायर्स। कंजंक्शन जॉइंट, जैसे आप कहीं पर भी क्या कर रहे हैं, दो यू कैन से दो वायर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ऑलराइट, कनेक्शंस बना रहे हैं, और वो कनेक्शंस कंडक्टिंग पाथ में होने चाहिए, राइट, ऊपर से, मतलब इंसुलेशन से नहीं बन रहा है कनेक्शन बन रहा है अंदर से जो कॉपर वायर है वहां से, राइट। तब जब हम करते हैं तो इस तरीके का जॉइंट हम दिखाते हैं, अ डॉट एंड अ लाइन, ठीक है। तो दैट वुड बी शोन एज द जॉइंट कनेक्शंस, ठीक है। वायर क्रॉसिंग, अगर एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है तो दैट्स कॉल्ड द क्रॉसिंग, ठीक है। तो वायर क्रॉसिंग में है इस तरीके का सर्कल कर देते हैं, दैट शोज कि भाई ये कनेक्टेड नहीं है अंदर से, दे आर जस्ट वन अबव द अनदर, ठीक है। तो दे विल शो यू दिस टाइप ऑफ सर्कल विल रिप्रेजेंट दिस दैट दे आर वन अबव द अनदर, ऑलराइट। बल्ब का अगर आपको सिंबल बनाना है, व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप सबसे पहले जो है इस तरीके का एक हार्ट शेप बनाएंगे और उसके ऊपर एक सर्कल बना देंगे, तो दैट विल मेक यू अ बल्ब, मतलब जो है वो बल्ब बन जाएगा, ऑलराइट। सो
ठीक है, ये थे 7th। नाउ देखेंगे स्विच। स्विच बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विच आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्विच होता है ओपन और यू कैन से ऑफ। ऑफ स्टेट को ही ओपन बोला जाता है, बिकॉज हमने देखा था ना, ओपन का मतलब होता है कि करंट फ्लो नहीं हो रहा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब ऑफ, राइट। तो बेसिकली उसके अंदर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि यहाँ से देयर इज अ ब्रेक, इस पूरे वायर के अंदर से जो है एक ब्रेक है, और राइट, तो दैट मीन्स दैट इज द ऑफ स्टेट। ठीक है, ये ऑफ स्टेट है, स्विच ऑफ किया हुआ है, राइट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरा वे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, दो सर्कुलर पैरेंथेसिस बनाएंगे, राइट, जिन्हें हम बोल देते हैं सर्कुलर ब्रैकेट्स बनाएंगे, और राइट, और इसके बीच में जो जगह है उसको खाली रहने देंगे। दैट विल मेक इट अ क्लोज, यू कैन से ओपन, नॉट क्लोज, राइट, दैट विल मेक इट ओपन एंड दैट विल शो दैट दिस इज नॉट कनेक्टेड एंड द करंट इज नॉट फ्लोइंग। ऑलराइट, स्विच को देखेंगे क्लोज्ड और ऑन, जब हमने ऑन कर दिया है स्विच को, राइट, एंड द करंट इज फ्लोइंग इनसाइड इट। सो बेसिकली हम इस तरीके से जॉइन दिखाएंगे, देयर इज नो ब्रेक एज यू कैन सी हियर। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं है, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज द ऑन स्विच। और इस तरीके से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वी आर मेकिंग अ डॉट इनसाइड दैट, तो दैट डॉट रिप्रेजेंट दैट दिस इज अ कंडक्टिंग थिंग। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब आगे जाके देखेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो बेसिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टर आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिगजैग लाइन से। ऑलराइट, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो बेसिकली दिस विल रिप्रेजेंट अ रेजिस्टेंस इनसाइड द सर्किट। और वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसे चेंज हो रहा है रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर मतलब वेरिएबल चेंज हो रहा है, राइट, बेसिकली वी कैन चेंज दैट, और वो हम रियोस्टैट की हेल्प से कर सकते हैं। रियोस्टैट इज अ डिवाइस which can change the resistances inside a conductor. Alright, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक zigzag line and there is a pointer pointing on any of the, you can say any of the bumps. ठीक है, so you can say ये एक लाइन जाती है। Alright, एमीटर जो एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब अगर हम इस एमीटर को इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्वाइन कर दें तो हमें ये एमीटर क्या बताएगा, मेजर ऑफ द करंट बताएगा, राइट। तो बेसिकली दिस इज अ डिवाइस व्हिच कैन मेजर करंट, ऑलराइट, तो हम उसे बताते हैं एमीटर एंड अ सर्कल अराउंड इट एंड टू वायर्स शोइंग द टू टर्मिनल्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। इसी तरीके से वोल्ट मीटर में हमने V लिख दिया है, एक सर्कल बना दिया है, एंड दीज आर द वायर्स शोइंग द टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, पहले तो मैं वोल्ट मीटर का बताऊं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, एंड ये हमेशा पैरेलल में ऐड किया जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रेजेंस बताता है कि करंट प्रेजेंट है कि नहीं किसी भी सर्किट में, एंड इट कैन ऑल्सो शो यू द डायरेक्शन। सो बेसिकली आपको गैल्वेनोमीटर मेंशन करने के लिए क्या करना है, एक G लिखना है, कैपिटल G लिखना है, यू हैव टू मेक अ सर्कल अराउंड इट एंड टू टर्मिनल्स लाइक प्लस माइनस। ठीक है, तो टू टर्मिनल्स बनाने, तो बेसिकली यू कैन मेक एनी ऑफ दीज सिंबल्स, और डेफिनेट सी बात है इतने इजी हैं, कोई भी ड्रॉ करे, जिसको ड्राइंग नहीं आता वो भी ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैल्वेनोमीटर कि भाई ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, लेट्स डू दैट। अ गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इनसाइड द कंडक्टर। देखो इस तरीके का दिखता है, वो बीच में इसका पॉइंटर होता है जीरो स्टेट में, राइट, तो बेसिकली नाउ इट इज शोइंग द जीरो करंट। अगर करंट पॉजिटिव साइड होता है तो इट विल शो यू दिस डिफ्लेक्शन, अगर नेगेटिव साइड में है तो इट विल शो यू दिस डिफ्लेक्शन। सो बेसिकली दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, सच टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर्स आर प्रेजेंट इन द मार्केट। ऑलराइट, तो बेसिकली पॉइंटर हमेशा जीरो पे रहता है, और जब कभी भी करंट फ्लो होता है तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है आइदर राइट और दी लेफ्ट, राइट। सो बेसिकली हम लोग ऐसा कर सकते हैं, दो तरीके के आप बोल सकते हैं गैल्वेनोमीटर प्रेजेंट है। नंबर वन इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर कॉइल्स जो होती हैं मूव कर सकती है, ऑलराइट, एंड मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑलराइट, जिसके अंदर जो है मैग्नेट्स को मूव करते हैं। सो बेसिकली हम लोग डेफिनेटली इन दोनों की हेल्प से, और यू कैन से कोई भी आप गैल्वेनोमीटर का टाइप चूज कर लिए, उन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब मेजर कर सकते हैं, और यू कैन से ऐसा डिवाइस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एमीटर की अगर हम बात करें तो एमीटर में देखेंगे ये पॉइंटर जीरो की तरफ है ऑलरेडी, ये सिर्फ आपको करंट बताएगा कि किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपको सिर्फ करंट बताता है एमीटर। सो बेसिकली इट इज अ डिवाइस व्हिच इज डेफिनेटली टेल यू द करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट के अंदर से।
और बेसिकली इसको जब हम अटैच करते हैं तो इसको हमेशा हम सीरीज में अटैच करते हैं। यू कैन सी हियर, जैसे ये है सीरीज में, तो बेसिकली दिस इज एमीटर एंड द बल्ब एंड द की एंड द बैटरी, तो एक ही लूप में ये चलते हैं। तो बेसिकली वी कैन से कि सीरीज में हमने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। एंड डेफिनेट सी बात है कि अगर हमें इस मतलब इस एमीटर का बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग चाहिए, सो वी हैव टू मेक लाइक जीरो रेजिस्टेंस। वाई जीरो रेजिस्टेंस? क्योंकि अगर वहां पे जीरो रेजिस्टेंस होता है, अगर कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो करंट जो है पूरे पोटेंशियल के साथ फुल करंट फ्लो करेगा और ये अच्छे से अपना मेजर कर सकेगा। तो बेसिकली एमीटर्स ऐसे होने चाहिए, जो आइडियल एमीटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस जीरो होता है। वैसे तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट आइडियली हम ऐसा बोल सकते हैं, और प्रैक्टिकली मिनिमम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना अच्छा, ठीक है। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वोल्ट मतलब आप कह सकते हैं वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। सो इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है, वो चीज मेजर करता है वोल्ट मीटर। आप देख सकते हैं एक ही तरफ है इसका पॉइंटर, तो जब कभी भी जितना भी मेजर होगा ये आपको डिफ्लेक्शन से शो करेगा। और इसको हमेशा एड ऑन किया जाता है, किस तरीके से? पैरेलल में। कैसे पैरेलल में? देखेंगे, ये था एक लूप, लेकिन अगर मुझे इस बल्ब के अक्रॉस जानना है कि भाई इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, देन आई हैव टू कनेक्ट इट इन दी पैरेलल। तो हमने क्या किया, इसे पैरेलल में शो कर दिया। ऑलराइट, तो बेसिकली दैट्स हाउ इट डज। एंड इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ऑलराइट, इनफाइनाइट होना चाहिए। देखिए क्या मतलब, बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस। आइडियली अगर हम बोलें, थ्योरेटिकली अगर हम बोले तो इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली हम लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो सके उतना ज्यादा अच्छा होगा, और उतना ज्यादा ये सही एक्यूरेट रीडिंग आपको दिखाएगा। सो बेसिकली हम लोग ऐसा बता सकते हैं। ऑलराइट, वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एमीटर के पास जीरो रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर है उसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है। यही एक मेजर डिफरेंस है। और आप बोल सकते हैं कि भाई एमीटर को सीरीज में ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दैट कैन ऑल्सो बी यू कैन से एक अच्छा जो है डिफरेंस है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओम्स लॉ। तो बेसिकली ओम्स लॉ आपको क्या बताता है? ओम्स लॉ आपको बताएगा रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। तो ओम्स जो थे, यानी जॉर्ज साइमन ओम जो थे, उन्होंने इन चीज का स्टडी किया, क्या होता है जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया जाए तो करंट में किस तरीके का चेंज होता है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने स्टडी करी एंड उन्होंने उसको एक रिलेशन के रूप में दिया। ऑलराइट, एंड दैट नोन एज द ओम्स लॉ। तो यू कैन सी हियर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो व्हाट ही सेज इज कि जब कभी भी ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, ऑलराइट, उन्होंने यही पता किया दैट दे आर प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे, करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। और इन्होंने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस को जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हट जाएगा तो देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट प्रेजेंट ओवर देयर, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको नाम दिया है रेजिस्टेंस। ऑलराइट, दैट इज द रेजिस्टेंस। एंड यू कैन सी हियर, इसी एक ओम्स लॉ से हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट दिया होगा तब हम देखेंगे कि जो करंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस मतलब एक वायर का होता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है बेसिकली। सो जो करंट है, ऑलराइट, ये करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस के। ऑलराइट, I कांस्टेंट है, ठीक है। I अगर कांस्टेंट होगा तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और अगर R कांस्टेंट हो गया है तो वी कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो बेसिकली यू कैन सॉल्व 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ओवर है। आप बता सकते हैं किसी भी करंट का रिलेशन विद द रेजिस्टेंस अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो। अगर आप बता सकते हैं पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करते हैं अगर करंट कांस्टेंट है। और बेसिकली आप बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट किस तरीके का रिलेशन शो करते हैं अगर R कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो बेसिकली दैट इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ, राइट। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। जब कभी भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाते हैं तो वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्लाइंड होती है, और इसका डेफिनेटली स्लोप तो होगा ही। वो स्लोप आपको कैसे मिलेगा? वो स्लोप मिलेगा आपको क्या? रेजिस्टेंस। कैसे मिला ये रेजिस्टेंस? देखेंगे, y एक्सिस पे कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी आर राइटिंग चेंज इन y एक्सिस एज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड x एक्सिस पे कौन है? करंट। So we are writing change in x axis as current. So we are giving V upon I, and that is by the Ohm's law is resistance.
सेकेंड्स। सो बेसिकली इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट वुड गिव यू द रेजिस्टेंस। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस भी अगर आते हैं कि भाई जैसे आपको दिया हुआ एक ग्राफ गिवन किया हुआ है और आपको बोला गया है कि नाउ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ऑल यू नीड टू कैलकुलेट जस्ट द स्लोप। आपने स्लोप कैलकुलेट किया, यू विल बी गेटिंग द रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो बेसिकली ये जो चीज है वो आप बता सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जितना भी चीजें हैं वो आपको नेसेसरी प्रैक्टिकल लैब्स में जो है मिलती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हमने क्या किया, एक एमीटर लिया है, ऑलराइट, जिससे हमें पता चल सके करंट कितना है, ठीक है। हम जो करंट मेजर करेंगे, बिकॉज हमें रिलेशन पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, तो अगर ये जो एमीटर है ये हमें मेजर करवाएगा करंट, ऑलराइट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल शो यू द पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री। देयर इज अ बैटरी, देयर इज अ की, देयर इज अ रियोस्टैट, ठीक है, विच कैन ऑल्टर द साइन और द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस। Alright, तो बेसिकली दिस इज द सर्किट यू विल नीड। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि करना क्या है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि भाई यहाँ पे हम एक सेल यूज करेंगे, सिर्फ एक सेल, ठीक है, और उस सेल को जब हमने यूज किया तब हम देखेंगे करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन दोनों की रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, वापस से अब इसमें एक सेल के साथ दूसरा सेल ऐड कर देंगे। नाउ देयर आर 2 सेल्स, ऑलराइट, तब हम देखेंगे करंट का क्या वैल्यू है और वोल्टेज का क्या वैल्यू है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का क्या वैल्यू है। फिर से हम जो है स्विच ऑफ करेंगे, वापस से इसमें आप 3 कनेक्ट करेंगे और उसके बाद वापस से इन दोनों का रीडिंग लेंगे एंड दैट हैज टू बी गोज ऑन। उसके बाद जब हम टेबुलर फॉर्म में अपना पूरा का पूरा वैल्यू लिख लेंगे, उस वक्त क्या होगा, जब हम लिख लेंगे एंड देन वी विल डेफिनेटली से कि हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। V 2V, या V तो तब जब एक सेल जोड़ा, 2V जब 2 सेल्स एक साथ कनेक्ट किए, 3V जब 3 सेल्स एक साथ कनेक्ट किए, 4V जब 4 सेल्स एक साथ कनेक्ट किए, ठीक। इसी तरीके से करंट ट्वाइस बन गया जब हमने 2 वोल्टेज जो है ट्वाइस 2 सेल्स यूज किए, सो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द करंट प्रेजेंट ओवर देयर, फिर थ्राइस, फिर 4 टाइम्स। सो बेसिकली दिस इज शोइंग अस कि भाई देयर इज ओम्स लॉ एंड दैट इज टोटली वैलिड इफ वी मेक द कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ऑलराइट, सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी द स्लोप इज tan थीटा, दैट इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ द स्लोप, राइट। तो आपने एक फॉर्मूला तो देख लिया, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला tan थीटा and this will also give you the resistance. Alright, the slope will be the resistance. तो अगर आपको कभी भी slope calculate करना है, you will always get a what? Resistance. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में जो है देखें तो, लेकिन कई बार क्या किया जाता है, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कई बार क्या किया जाता है, करंट को अगर y एक्सिस पे प्लॉट कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर x एक्सिस पे प्लॉट कर दिया जाए, तब आपको इसका स्लोप क्या मिलेगा, 1/r मिलेगा, रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट पोटेंशियल डिफरेंस y एक्सिस पे है और करंट x एक्सिस पे ही होना चाहिए, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू रेसिप्रोकल कर देना है, तभी आपको सही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको ये बात तो पता है कि कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री होते हैं और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर जो कि क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल मतलब अपनी जगह से मूव नहीं करते, फिक्स होते हैं। तो देखो जब कभी भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और यहाँ पे फिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिक्स वाले बीच में अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, दूर से आता वो उनसे आके टकराएगा तो अपनी एनर्जी कुछ दे देगा। तो बेसिकली जो यू कैन से कि जो स्टेबल वाले हैं, जो फिक्स हैं, उनका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बिकॉज दे विल बी गेनिंग एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं करंट की वजह से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहां प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो स्टेबल वालों से जो अपनी जगह पे फिक्स हैं उनसे जाके टकरा जाएंगे, क्योंकि खाली जगह तो है नहीं, तो बेसिकली वो उनसे जाके टकरा जाएंगे। जब वो टकराएंगे सो बेसिकली क्या होगा, अपनी एनर्जी वो स्टेबल वालों को यानी फिक्स वाले इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, ठीक है। टकराहट में ऐसा होता ही है, दैट इज कोलिजन एक डिफरेंट टॉपिक है, और इसमें ऐसा होता है कि एनर्जी जो है दे दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, उस बैठे हुए यानी फिक्स इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी,
एनर्जी मिलेगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, और बेसिकली हर एक फिक्स इलेक्ट्रॉन का अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इस पूरे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम बोल भी सकते हैं, और इसी वजह से जो है एक तरीके का रेजिस्टेंस मिलता है, बिकॉज कोलिजन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनको टकरान मिल रही है, तो वो जिस स्पीड जिस एनर्जी के साथ जा रहे थे वो कम हो जाएगी। तो बेसिकली देयर वुड बी अपोजिशन ऑफ कि भाई वो फ्लो कर रहे हैं, उसका एक अपोजिशन मिल गया है, वो अपनी फुल पोटेंशियल से फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स व्हाई देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, ऑलराइट, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू। ऑलराइट, तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू इट। तो जितना ज्यादा इसके अंदर ऐसे स्टेबल वाले होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, इन ब्लू वाले जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं उनका एनर्जी लेते चले जाएंगे, और उनको एक तरीके से ऑपोजिशन फील होगा कि भाई जो वो जा रहे थे, जितना एनर्जी उनके पास थी वो तो ले ली गई बेसिकली, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की कि वो करंट के मोशन को, फ्लो को रोक सके, अपोज कर सके, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ये जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का, वो क्या है, दैट इज दी ओम, बिकॉज ओम्स लॉ, ठीक है, ये तो समझ में आया, ओम्स लॉ है, उसी के अंदर से रेजिस्टेंस का पता चला। दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो ओम रख दिया गया है, सो दैट उनका जो है हम रिस्पेक्ट कर सके कि भाई उन्होंने इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ऑलराइट, तो बेसिकली वी डू दैट, इस सिंबल से हम ओम को शो करते हैं। इस सिंबल से हम ये भी बता सकते हैं, देखो V अपॉन I, तो वोल्टेज अपॉन एम्पियर, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज दी ओम, ठीक है। तो ओम को हम वोल्टेज अपॉन एम्पियर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर 1 वोल्ट कर दिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर कर दिया जाए करंट, तो हमें पता चलेगा दैट द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम 1 ओम देख सकते हैं। अब देखो ध्यान से कि हमने इसी रेजिस्टेंस पे बेस्ड 3 टाइप्स में मटेरियल्स को डिवाइड किया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, रेजिस्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से बहुत इजीली करंट फ्लो हो जाए, अपोजिशन बहुत ही कम हो, तो बेसिकली रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टर्स ऐसे होते हैं विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टर्स हुए। फिर आता है इंसुलेटर, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, मतलब करंट को अपने अंदर से जाने ही नहीं देते, ठीक है, बिल्कुल भी जाने नहीं देते, एंड दोज आर कॉल्ड वुड, प्लास्टिक, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, राइट। तो बेसिकली ये इंसुलेटर्स वही होते हैं। अब देखेंगे कंडक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देते हैं। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह ये सब कॉपर से बने होते हैं, ताकि क्योंकि उन्हें गुड कंडक्टर की जरूरत होती है, राइट। अब हम बात करते हैं रेजिस्टर्स की, राइट, नॉट दी इंसुलेटर। रेजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके थोड़ा सा ज्यादा होता है इनके पास रेजिस्टेंस, और जनरली ये जो होते हैं एलॉय के बने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, जैसे कि नाइक्रोम के अंदर निकल और क्रोमियम मिला हुआ है, ठीक है, 4:1 के रेशियो में। सो बेसिकली वो 2 मेटल से मिलके बना हुआ है, तो दैट इज एन एलॉय, इनका रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और रेजिस्टर्स का काम क्या होता है कि वो करंट को कम कर दे, डेफिनेट सी बात है, ज्यादा रेजिस्टेंस है तो मतलब वो करंट को ज्यादा फ्लो ही नहीं होने देगा, तो करंट अपने आप ही कम हो जाएगा। सो बेसिकली इनका काम ही यही है कि करंट को कम कर सके किसी भी सर्किट में। Now let's talk about the insulator। जो इंसुलेटर होते हैं, ये इंसुलेटर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इंसुलेटर अपने अंदर से तो जाने नहीं देते, तो हम इंसुलेटर का उस जगह पे यूज करते हैं जहां पर भी हमें करंट से बचना होता है, जैसे कि रबर ग्लव्स। इलेक्ट्रीशियंस जो होते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है, तो तब क्या होता है, वो अगर ये रबर ग्लव्स पहन ले, ठीक है, तो बेसिकली वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है हम लोग यूज करते हैं ताकि हमको भी जो है करंट का शॉक ना लगे। जैसे कि वायर्स के ऊपर जो इंसुलेशन होता है, ग्रीन, रेड, येलो, जो भी कलर का इंसुलेशन होता है, तो वो भी एक क्या होता है, प्लास्टिक ही होता है। तो बेसिकली यू कैन से कि हमको वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है एक तरीके से बचाने में, इलेक्ट्रिक शॉक को बचाने में, राइट। सो बेसिकली इट हैपेंस, राइट। Now let's talk about the factors affecting the resistance of a conductor। रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको किस तरीके के फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो लेंथ, जितना लंबा वायर उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना मोटा वायर उतना ही कम रेजिस्टेंस।
नेचर ऑफ द मटेरियल, अब ये नेचर ऑफ द मटेरियल तो भाई कंडक्टर है, रेजिस्टर है, इंसुलेटर है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आता है टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कंडक्टर्स के केस में। ऑलराइट, सो बेसिकली ये चीज हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना लंबा वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। ऑलराइट, एरिया पे देखते हैं, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब जितना मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस, जितना पतला वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ऑलराइट, अगर हम देखें इन दोनों को मिलाकर कि हम लेंथ को भी कनेक्ट कर दे और एरिया को भी कनेक्ट कर दे, तो बेसिकली व्हाट वी विल बी गेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा एक नया कांस्टेंट आएगा, वो नया कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये जो होता है, ये जो रेजिस्टिविटी होता है, ये एक तरीके से हर एक मटेरियल का नेचर डिसाइड होता है कि भाई वो किस तरीके का नेचर है उसका। बेसिकली वी कैन से दैट एंड दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये रोता रहता है, बट वी से इट एज अ रो, RHO, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट, नेचर ऑफ द कंडक्टर, दैट रो जो हमने अभी भी देखा है, दैट इज द नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेचर का, रो ज्यादा हुआ कम हुआ तो उसके बेसिस पे हम रेजिस्टेंस के लिए भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, इस रो को कैलकुलेट करने के लिए हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे ही जाएंगे, RA/L, ठीक है। हमने उसी को रीअरेंज कर दिया, जो फॉर्मूला अभी हमने देखा उसी को रीअरेंज कर दिया है। तब हम बोलेंगे जो RA/L दैट विल गिव यू व्हाट, द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर और द नेचर ऑफ द मटेरियल, वी कैन से दैट, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये बेसिकली किसके इक्वल होती है, ये होती है अगर हम जो एरिया है उसको 1 मीटर स्क्वायर बना दे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर है लेंथ, अगर इसको हम 1 मीटर बना दे तब जो भी वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी दैट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ऑलराइट, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर मतलब जितना ज्यादा होगा, क्योंकि उस वक्त क्या होगा, एनर्जी सबको ज्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से कोलिजन ज्यादा होंगे, तो बेसिकली वहां पे रेजिस्टिविटी ऑपोजिशन ज्यादा होगा एंड दैट विल टेल यू दैट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर। तो बेसिकली रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नाउ यू कैन सी द फॉर्मूला RT मतलब एक किसी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो R0 इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, RT इज द रेजिस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस, किसी भी एक टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसका क्या रिलेशन होगा, तो RT वुड बी इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, दैट डेल्टा इज T-0, तो दैट डेल्टा T इज T-0, चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा का क्या होगा, वो होगा कोफिशिएंट, टेम्परेचर का कोफिशिएंट, सो बेसिकली इट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखते हैं भाई रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वो चीज तो देखी ली किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं, रो इक्वल्स टू RA/L एंड अगर हम इसका यूनिट की बात करें तो वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर जो है वो उसका यूनिट बन जाएगा। तो बेसिकली इट इज ऑल गुड। अब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसका फॉर्मूला अगर ऐसा दिखता है, ठीक है, RA/L है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो रो है ये डिपेंड करेगा कंडक्टर के एरिया पे, कंडक्टर के लेंथ पे, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे, ऐसा नहीं होता है। ये एक अलग क्वांटिटी होती है जो कि सिर्फ नेचर पे ही डिपेंड होती है। तो बेसिकली ये लेंथ एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में ही ऐसा होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंस रेजिस्टिविटी की बहुत है क्योंकि कई जगह पे वो यूज होते हैं, जैसे कि कई ऐसी जगह पे जहां पे हमें क्या करना होता है, अलग वे में चेंज करना होता है। लेट्स से लाइट, जो बल्ब होता है उसके अंदर जो वायर होता है उसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगता है इंस्टीड ऑफ कि भाई करंट उसके अंदर से चला जाए, ठीक है। तो वो ग्लो करने लगता है। तो बेसिकली इस तरीके के डिवाइसेस में जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, तो बेसिकली ऐसी जगहों में हम लोग इसको यूज करते हैं रेजिस्टर्स को। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग इसको जितना भी ज्यादा यूज कर सके, डेफिनेट सी बात है। और ये ऐसी जगहों पे स्पेशली यूज होता है जहां पे हमें करंट कम चाहिए होता है, जहां वी वांट टू डिक्रीज द करंट, यही जो है इसका इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, अब देखते हैं रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बट इट रिड्यूसेस फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तो बेसिकली हमको ध्यान रखना है कि हम किसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कंडक्टर्स का कर रहे हैं
तो फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सेमीकंडक्टर्स का कर रहे हैं तो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर कंडक्टर्स के केस में ऐसा करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली दैट वाज इट। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स की। देखो सुपर कंडक्टर्स होते हैं जो कि जिनका यू कैन से कि वो एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है एंड वो बहुत ही तेजी से जो है करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो बेसिकली रेजिस्टेंस कम हो जाता है ऐसे डिवाइसेस का या फिर ऐसे मटेरियल्स का जब कभी भी यू कैन से कि टेम्परेचर कम करें, लेकिन टेम्परेचर डेफिनेटली बहुत कम कर सकते हैं काफ़ी, क्योंकि ये जनरली कहाँ यूज़ होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। तो अगर इनका टेम्परेचर बहुत कम कर दिया जाएगा, इनका रेजिस्टिविटी लगभग जीरो के पास हो जाएगी। जीरो तो कभी नहीं हो सकती बट जीरो के पास हो जाएगी। तो बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा जिसकी वजह से करंट बहुत अच्छे से फ्लो होगा। और जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, नॉट द सेमी, सुपर कंडक्टर जो यूज़ होते हैं, तो बेसिकली इसी काम के लिए यूज़ होते हैं जहाँ पर भी हमें बहुत ही अच्छे वे में करंट चाहिए होता है, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस का जो वायर चाहिए होता है, तो बेसिकली हम तब वहाँ यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं व्हाई एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। क्यों ऐसा होता है कि हम एलॉयज को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। देखो द मेन मोटिव इज दैट एलॉय क्या होता है, रेजिस्टर होता है। रेजिस्टर का काम क्या होता है कि वो करंट को कम कर देगा, ठीक है, करंट को कम कर देगा, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिक पावर आ रही है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एक दूसरे वे में, दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, जस्ट लाइक हीटिंग एनर्जी। ऑलराइट, तो बेसिकली जैसे कि ये टोस्टर, ठीक है, जैसे कि बल्ब, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम एलॉयज को यूज करते हैं तो रेजिस्टर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टर ही होता है एलॉय, वहाँ पे करंट कम हो जाएगा, लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रिक पावर आ रही है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सबका सब एज अ हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ग्लोइंग में यूज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो रहा है। तो बेसिकली इसलिए हम लोग करते हैं, एक तो फर्स्ट की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम, ज़्यादा मतलब यू कैन से बहुत ही सही होती है, ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है और करंट कम जा रहा होता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो फर्स्ट नंबर तो ये इसलिए करते हैं, जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर पे और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा भी दो तभी भी वो जो है मेल्ट नहीं होते, जैसे कि आप खुद इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक यू कैन से टोस्टर में देख सकते हैं कि वहाँ पे भी तो सेम ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है मटेरियल का कि वो ग्लो करने लगता है, राइट, उसके बावजूद भी वो मेल्ट नहीं होता। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेजिस्टर, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने देखे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीरीज एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन कब होता है, जब कभी भी देयर इज नो एनी ब्रेक और एक ही लाइन में चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लग रहे हैं, तो बेसिकली दैट इज नोन एज द सीरीज। ये कंडीशन भी सीरीज की ही है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक ही जा रहे हैं। ऐसा ध्यान में रखो कि करंट को जाने के लिए एक ही पाथ मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द सीरीज, ठीक है। लेकिन अगर करंट को जाने के लिए दो पाथ मिल जाए, जैसे यहाँ है करंट, अब वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है और बीच में भी जा सकता है, तो बेसिकली उसके पास तीन पाथ आ गए। और जहां पर भी उसके पास तीन पाथ आ गए तो मतलब करंट जो है वो अब उसको एक पाथ नहीं रहा, तो दैट इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ब्रांचेस हो गई हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रांचेस से जाके वापस जो है करंट पूरे वायर में आ जाता है, एक ही में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का कनेक्शन भी दैट विल आल्सो कंसीडर्ड एज द पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि देखो यहां से जाने के बाद देयर आर टू ब्रांचेस जिसके अंदर करंट जा सकता है, तो उसको दो पाथ मिल गए। जब उसको दो पाथ मिल जाते हैं दैट इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, चलिए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक के बाद लगे होते हैं। मेन आपको ये बात ध्यान रखनी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, वो ये रखना होता है दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट रहता है, ठीक है, देखेंगे जो करंट रहता है वो होता है सेम, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे देखेंगे पूरे इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो सेम रहेगा, मतलब इस R1 में भी सेम करंट देखो I, R2 में भी सेम करंट I, R3 में भी सेम करंट I, तो मतलब पूरे सर्किट में सेम करंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। कैसे? V1 आ रहा है, R1 में V1 आ रहा है, R2 में V2 आ रहा है, R3 में V3 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में पूरे सर्किट का तो V है। तो बेसिकली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हर एक रेजिस्टर में डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑलराइट, एंड यही कंडीशन होती है किसकी,
सीरीज कॉम्बिनेशन की। ऑलराइट, तो अगर मैं क्या करूं भाई, हर किसी में यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगा दूं, यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगा दूं, यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगा दूं और पूरे सर्किट का एक बार में लगा दूं। अगर ऐसा मैं करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग 3 इक्वेशंस लाइक दिस, हर एक का ओम्स लॉ लगा दिया, फिर हमने एक फाइनल लगा दिया। फाइनल जब पूरे सर्किट का हम बात करें तो V इक्वल्स टू IRS हो गया। अब ये जो IRS है उससे हमें निकालना है, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द 3 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं V1 V2 V3 ऐड ऑन हो रहे हैं, ऐड कर देंगे, टोटल V हमको मिल जाएगा। और हम जो वैल्यूज हमने पुरानी इक्वेशन से निकाली है, जैसे कि ये V1 का वैल्यू IR1, इसी तरीके से तो V1 का वैल्यू IR1 ऐसे लिख के हमने लिखा, एंड देन व्हाट वी डिड, I को कंबाइन करके कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन वी गेट रेजिस्टेंस का क्या निकला, R1 R2 R3। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बेसिकली दैट इज द फॉर्मूला फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में सिर्फ ऐड कर देना होता है। और पता है यही रीजन भी होता है कि हमेशा देखो, हमेशा यू कैन से कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फाइनल वाला जो रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो हमेशा बड़ा होता है, R1 से भी बड़ा होगा। खुद से देख सकते हो ना, RS जो है R1 से भी बड़ा होगा, RS R2 से भी बड़ा होगा, RS R3 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि ऑलवेज RS इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल नहीं, पहले तो हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स मेनली यही है, देखो फीचर्स मेनली यही है कि करंट वुड बी द सेम, ठीक है। वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा, हर किसी में यू कैन से अलग अलग ओम्स लॉ हमें लगाना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा आपको सम मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जितनी भी रेजिस्टेंस है उन सबका सम अगर हम कर देंगे तब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये, और उसके अलावा भी जो है वो देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। तो देखेंगे RS इज ग्रेटर देन R1, RS इज ग्रेटर देन R2, RS इज ग्रेटर देन R3, ठीक है। यही फीचर्स होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है कि वहां पर करंट इस बार डिफरेंट होता है लेकिन वोल्टेज इस बार सेम होता है, ठीक है। कैसे देखेंगे, अभी इसमें देखो ये जो वोल्टेज है ना, इन दोनों में सेम, इसमें भी V, इसमें भी V, ठीक है, लेकिन करंट डिफरेंट। ये इसमें देखो टोटल करंट I, लेकिन ऊपर वाले में जा रहा है I1, नीचे वाले में जा रहा है I2। तो बेसिकली करंट इस बार डिफरेंट है लेकिन वोल्टेज वुड बी द सेम। ऑलराइट, अब हम क्या करें, वापस से जो है R1 के लिए वापस से जो है लगा देते हैं ओम्स लॉ, R2 के लिए अगेन ओम्स लॉ लगा देते हैं, लगा दिया तो हमें क्या मिला, I1 का वैल्यू मिल गया V/R1 इस केस में, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर हम दूसरी बात करें I2 के केस में तो I2 बराबर V/R2, ऑलराइट। तो दैट्स व्हाई हमने ओम्स लॉ लगाया। अब हम पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगा देते हैं तो वी वुड बी गेटिंग V इक्वल्स टू IR/P। ये जो P होगा उसका, अब देखो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इनका वैल्यू फटाफट से पुट कर देते हैं, V/RP, V/R1, V/R2। अब V को ले लिया कॉमन, कैंसिल कर दिया, व्हाट वी विल बी गेटिंग 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेसिकली अगर हमें क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा 1/RP, यानी उन सभी का रेसिप्रोकल। क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट गिव्स यू रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल और उनका भी सम। ऑलराइट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके भी फीचर्स क्या होंगे, इसके फीचर्स ये होंगे दैट करंट वुड बी द डिफरेंट, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग डिफरेंट जो करंट होगा वो जाएगा। जिस किसी में कम रेजिस्टेंस है उसमें से ज्यादा करंट जाएगा, जिस किसी ब्रांच में ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें से कम करंट जाएगा। जैसे देखो इसमें अगर 2 ओम है और 1 ओम है तो 2 ओम रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट वहां से कम जाएगा। तो मानो अगर ये 5 एम्पियर था तो करंट कम जाएगा बिकॉज ज्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन 1 ओम की बात करें तो ये कम रेजिस्टेंस है 2 के मुकाबले, तो यहाँ पर 3 एम्पियर ज्यादा करंट गया ऊपर वाले ब्रांच के मुकाबले, राइट। तो बेसिकली ये जो है वो सब के सब फीचर्स हैं किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के।
ऑलराइट, फिर मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा ये बात ध्यान रखें, कभी भी आपको सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो उनको सीरीज में जोड़िए, अगर आपको किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है, सबसे कम करना है, तो हमेशा उनको पैरेलल में जोड़िए, ठीक है। और बाकी में बीच के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सब बीच की वैल्यूज आपको देंगे रेजिस्टेंसेस की। सो बेसिकली दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ऑलराइट, तो ये चीज जो है हमने आज सीखी। अगले लेक्चर में 11 जो कि हीटिंग इफेक्ट एंड यू विल बी सीइंग द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अगले लेक्चर में हम लोग इनका करेंगे रिवीजन, और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के होंगे और थोड़े बहुत फॉर्मूले बेस्ड भी होंगे, लाइक इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली यू नीड टू रिवाइज दैम, ऑलराइट, एंड देन यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दैम विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डेफिनेटली यू कैन सी दिस कि भाई आपको अब समझ में आ रहा होगा, भाई हमने इतना सब कुछ जो पढ़ा है, ठीक है, उन सबको अब हम रिवाइज कर रहे हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो सब क्लियर होंगी। ऑलराइट, बार बार रिवाइज हो रहा है तो इसका मतलब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ भी रहा है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, ऑलराइट, ताकि सभी इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।